سے پہلے علامہ مسعود الرحمن عثمانی شہید کے خاندان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، جنہوں نے ناموس صحابہ کے لیے اپنے اس عظیم فرزند کو پیش کیا۔ اللہ نے انہیں قبول کیا اور شہادت کے رتبے پر فائز ہوئے۔ پورے ملک کی جماعت، بالخصوص پنڈی ڈویژن کے تمام ذمہ داران، کارکنوں کو، جماعت کے تمام ورکروں کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ہمارا تسلسل، ہمارا راستہ تھا وہ یہی تھا۔ ہم ایک بار پھر اپنے راستے پر خون دے کر یہ ثابت کر گئے کہ دیوانے ہر دور میں صحابہ کی عظمت پہ اپنا خون بہاتے رہیں گے۔ تیسری بات، میں اس جملے کو کس طرح کہوں کہ ہمارے بھائی ہم سے بازی لے گئے۔ بس اتنا کہتا ہوں، ہمارے بھائی ہم سے بازی لے گئے۔ ہمارا تو مقابلہ تھا کہ پہلے ہم جائیں گے۔ عثمانی، تیرے جذبوں میں صداقت زیادہ تھی، تیرے لگوں میں چلنے والے خون میں اخلاص زیادہ تھا۔ ہم تسلیم کرتے ہیں، تیرے جذبے جوان تھے، ہم مانتے ہیں تو اس جذبوں میں ہم سے بازی لے گیا۔ آج تو چلا گیا۔ اس نظریے پہ حق نواز سمیت جتنے لوگ شہید ہوئے تو ان سب سے ملے گا، تو ان سب کا مہمان ہوگا۔ انہیں ہمارا سلام دے دینا اور یہ پیغام دے دینا، ہم جانیں لٹا دیں گے، بچے قربان کر دیں گے، مگر نظریے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ میں اس سے اگلی بات جو کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس واقعے کے پیچھے کون ملوث ہے۔ ایک شخص نے اسلام آباد میں کہا تھا یہ خمینی کا شہر ہے۔ عثمانی نے اس کے کچھ دنوں بعد اس شہر میں اور اس دھرتی میں صحابہ اور صحابہ کی گونج لگا کر بتایا تھا یہ شہر صدیق کا شہر ہے۔ اس کے بعد یہ لوگ سر جوڑ کر بیٹھے، گلگت کی بات آئی، پارا چنار کی بات آئی۔ میں کراچی سے شروع کرنے لگا ہوں۔ ایک ویلفیئر بنی ہے جس کا نام JDC ہے، جس کے سربراہ کا نام ظفر عباس ہے۔ اس کے 5 اکاؤنٹ ہیں، ان 5 اکاؤنٹ سے امریکہ سے پیسہ آ رہا ہے۔ میں بڑی درد دل کے ساتھ اداروں سے پوچھنا چاہوں گا، یہ 5 اکاؤنٹس میں جو پیسہ آ رہا ہے یہ پیسہ کہاں جا رہا ہے؟ JDC کے ایمبولینس پارا چنار میں کیا کر رہی ہیں؟ گلگت میں کیا کر رہی ہیں؟ شام، عراق، لبنان جانے والوں کے گھروں پہ پیسہ کون دے رہا ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں، کچھ دن قبل ساجد نقوی نے ایک ایرانی سفیر کو رخصت کیا اور دوسرے ایرانی سفیر کو خوش آمدید کہا۔ یہ انہوں نے وہاں بیٹھ کر کیا چیزیں طے کی ہیں؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں، راجہ ناصر عباس بیرون ملک سفر کر رہا ہے اور سفر کر کے حسن نصر اللہ سے مل کر یہ کیا منصوبہ بنا رہا ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں، شہنشاہ نقوی سمیت، شبیر میسوی سمیت یہ بین الاقوامی دورے کس غرض سے کر رہے ہیں؟ یہ ملک بھر میں کہاں کہاں گھوم رہے ہیں؟ ان کی باز پرس کیوں نہیں ہو رہی؟ ان پر نظر کیوں نہیں رکھی جا رہی؟ زینبون، فاطمیون یہ کہاں سے لیڈ ہو رہے ہیں؟ انہیں کون لیڈ کر رہا ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں، حزب اللہ کے سربراہوں کی تصویریں پاکستان میں
क्यों लहराई जा रही हैं। मैं पूछना चाहता हूँ गैर मुल्कियों के यौम यहाँ पर क्यों मनाए जा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ हिजबुल्लाह के नाम पर यहाँ ट्रेनिंग सेंटर क्यों खोले जा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ स्क्वाड्स के नाम पर बच्चों और जवानों को ट्रेनिंग क्यों दी जा रही है। इदारों की आंखें क्यों बंद हैं। मैं क्या सवाल करूं तुमसे, मैं क्या बात तुमसे पूछूं। हमारा लीडर, हमारा कायद उस्मानी आज हमारे दरमियान मौजूद नहीं है। इदारों वालों, इंतजामिया वालों, रियासत वालों, मैं इस्लामाबाद में खड़ा हूं और इस्लामाबाद में खड़े होके कोई कहानी किस्सा नहीं सुनाने लगा। मैं तुमसे कहने लगा हूं कल जिस वक्त हमें यह खबर आई थी कि जनाब अल्लामा मसूदुर रहमान उस्मानी शहीद हो गए, उस वक्त पाकिस्तान के हर चौक पर, हर चौराहे पर एक जुलूस मौजूद था, नौजवान मौजूद थे, वो उस वक्त वहां मौजूद थे। सिर्फ एक बात करने की देर थी कि उठना नहीं, यहीं बैठे रहना। और मैं कराची के उस जुलूस में जो लाखों इंसानों पर मुश्तमिल था, जब उसके आगाज में चला, मुझे ये खबर मिल गई। हमारा सबर समझो, हमारी हिम्मत समझो, हमारी हुब्बे वतनी समझो, पाकिस्तान से प्यार समझो, पाकिस्तान से वफा समझो। हम समझते हैं इस मुल्क में एक तबका इंतशार फैलाना चाहते हैं। हम समझते हैं गैर मुल्की एजेंसियां इस मुल्क में अफरा तफरी फैलाना चाहती हैं। हमें मालूम है, हम समझदार हैं, हमें हमारे अकाबिर ने बताया इस मुल्क को तोड़ने के लिए गैर मुल्की एजेंसियों ने गठजोड़ कर लिया है। ईरान, मुसाद और इंडिया ने एक होकर इस मुल्क को नुकसान पहुंचाने का तैयार कर लिया है। हम उनके इस मंसूबे को नाकाम बना रहे हैं, हम इस मंसूबे को नाकाम कर रहे हैं, हम इस मंसूबे को फेल कर रहे हैं। लेकिन एक सवाल उठाना चाहता हूं, सवाल ये उठाना चाहता हूं, हम ये कहते हैं ये गैर मुल्की एजेंसियां हैं, अफरा तफरी ये फैलाना चाहती हैं। उसके बाद मेरा साथी सलीम खत्री शहीद हो गया, उसके बाद मेरा साथी इरशाद शहीद हो गया, उसके बाद मेरा साथी जनाब सलीम शहीद हो गया। 4 लोग कराची में इन दिनों में शहीद हुए। तुम कहते हो ये अफरा तफरी बनाना चाहते, मचाना चाहते, मुल्क में बदमनी करना चाहते। मेरा सवाल है, मुल्क में बदमनी फैलाने के लिए हम ही रह गए, हमें ही मारा जाएगा, हमें ही कत्ल किया जाएगा, ये कुर्बानी हम ही देंगे, ये कुर्बानी हम ही ने देनी है। अमन हमें ही अजीज है, मुल्क हमें ही अजीज है, मुल्क से हमें ही प्यार है, मुल्क से हमें ही वफा है। औरों को क्यों नहीं है, इदारों वालों तुम्हें क्यों नहीं है, निकलते क्यों नहीं हो, पकड़ते क्यों नहीं हो, बेनकाब क्यों नहीं करते हो, चेहरे से निकाब को क्यों नहीं उतारते हो, कटहरे में क्यों नहीं लाते हो। हिजबुल्लाह का नाम लेने वाला कौन है, ज़ेरेबुन बनाने वाला कौन है, फातमियोन बनाने वाला कौन है, शाम जाने वाला कौन है, इराक जाने वाले कौन है, दहशतगर्दी करने वाले कौन है, कत्ल क़िताल करने वाले कौन है, क्यों नहीं बताते। हक नवाज का कातिल कौन है, इशार का कातिल कौन है, मुख्तार का कातिल कौन है, आज़म तारिक का कातिल कौन है, अली शेर हैदरी का कातिल कौन है, यूसुफ रिज़वानी शहीद का कातिल कौन है, शामसाई शहीद का कातिल कौन है, क्यों नहीं बताते। डॉक्टर आदिल खान पर हमला करने वाले कौन है, शहीद करने वाले कौन है, क्यों नहीं बताते, क्यों नहीं बताते। शेखुल इस्लाम मुफ्ती तकी साहब पर हमला करने वाले कौन है, अगर तुम नहीं बताते या तुम्हारे इल्म में नहीं है, तुम छुपाना चाहते हो। मैं छुपने छुपाने का कायल नहीं हूँ, छुपने छुपाने वाले को मानता नहीं हूँ। इस्लामाबाद में खड़े होकर मैं तुम्हें बता रहा हूँ, इन सब के कातिल ईरान में मौजूद है, तेहरान में मौजूद है, ईरान में मौजूद है, शिया की सूरत में मौजूद है, तकरीबकारों की सूरत में मौजूद है, तकफीरियों की सूरत में मौजूद है, गिलगित में मौजूद है, बारा चंदार में मौजूद है, इस्लामाबाद में मौजूद है, पिंडी में मौजूद है। क्यों ये नेटवर्क नहीं पकड़ा जाता, क्यों उस नेटवर्क पर हाथ नहीं डाला जाता। पूछना चाहता हूँ, मैं तो अमन का दाई हूँ, मेरी क्यादत तो अमन की दाई है। यही अमन का तुम हमसे ये सबूत लेना चाहते हो, हमारी जाने लेना चाहते हो, हमारे जवान लेना चाहते हो, हमारे लीडर लेना चाहते हो। हक नवाज से लेकर आज उस्मानी तक कितने लोग दिए, मगर सबर के दामन को नहीं छोड़ा। मजबूर मत करो, मजबूर मत करो। मेरे दोस्त, मेरे भाई नारा लगा रहे थे
पार्लियामेंट जाना है। मेरे दोस्त भाई नारा लगा रहे थे पार्लियामेंट जाना है। मैं तुम्हारे जज्बे को सलाम करता हूं, लेकिन मैं खाली पार्लियामेंट में नहीं जाना चाहता। मेरे दोस्त कह रहे थे हमने पार्लियामेंट जाना है, जिस पार्लियामेंट पे ताला लगाओ हम उस पार्लियामेंट में नहीं जाना चाहते। हाँ, हम पार्लियामेंट में जाना चाहते, मगर आजम तारिक की तरह जाना चाहते। खुलेगा दरवाजा, होगी बात। जो नारा आपने चौक चौराहे पे लगाया, नारा यहां लगाया है, फैसला वहां कराएंगे। नारा यहां लगे, फैसला वहां करेंगे। इसलिए अभी इस पार्लियामेंट में जाएं जिसका वजीर आजम खुद मेहमान है, जिसे खुद नहीं पता उसने कब चले जाना है। हम जाएंगे, जरूर जाएंगे। ये पार्लियामेंट हमारा है, ऐवान सदर हमारा है, असेंबलियां हमारी हैं, इदारे हमारे हैं, फौज हमारी है, पुलिस हमारी है। हम उनके हैं, वतन हमारा है, हम वतन के हैं या नहीं है? वतन के हो या नहीं हो? वतन के हो या नहीं हो? मैंने सवाल उठाया, वो कहां हैं? इन्हें गिरफ्त में क्यों नहीं लिया जाता? लिया जाना चाहिए, नहीं लिया जाना चाहिए? कायदे मोहतरम ऐलान करेंगे, तारीख देंगे, वक्त देंगे। हम उस वक्त तक इंतजार करेंगे। हम खुद कुछ नहीं करेंगे, इंतजार करेंगे। जब वक्त पूरा हो जाएगा फिर बारी तुम्हारी होगी, फिर जवाब दे तुम होगे। हमने यहां जनाब इदरीस शहीद और मुनीर शहीद और दीगर शुहदा के जनाजे लिए, ये भी लिया। आप मजमे की तादाद देख रहे हैं, इसलिए आपने हिम्मत, जज्बे और हौसले के साथ आगे बढ़ना है। अगली बात, हमारे नारे से लोग परेशान हैं। एक नारा पहला था जिससे लोग परेशान हैं, नए नारे की गूंज ने उनकी नींदें हराम कर दी हैं। मैं इस्लामाबाद में खड़े होकर जुनून की हद में आगे बढ़ के नारा लगाने लगा हूं। जवाब आना चाहिए। वो नारा क्या है? साहबा 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 साहबा। उस्मानी तेरे सराहने खड़े होके आवाज लगा रहे, साहबा 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 साहबा। उस्मानी तेरी मुलाकात होगी, उस मुलाकात में कह देना ये सदाएं लग रही हैं, साहबा 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 साहबा। दो बातें छोटी छोटी। पहली बात दुश्मनों से, मैंने अरबाब इख्तिदार से बात कर ली। पहली बात दुश्मनों से, हक नवाज से लेकर उस्मानी तक लोग गए, इनमें कमी आई है, जज्बात में कमी आई है। हम तुम पर अगर कोई नरमी करना चाहे भी, तुम्हारी हरकतें नरमी होने देती नहीं। ये जो कुछ आज सारा दिन तुमने सुना, ये तुम्हारी किस्मत में है। शहादतें तो हमारा वर्षा है, पहले भी देते थे, फिर भी देते रहेंगे। मेरी आखिरी बात आपसे है, तवज्जो के साथ सुनना। अल्लामा उस्मानी एक फर्द का नाम नहीं, एक तारीख का नाम है। अल्लामा उस्मानी एक शख्स का नाम नहीं, एक अहद का नाम है। अल्लामा उस्मानी एक फर्द का नाम नहीं, एक जमात का नाम है। अल्लामा उस्मानी एक शख्स का नाम नहीं, बल्कि नज़म का नाम है, तंजीम का नाम है, जमात का नाम है। आओ उस्मानी से सबक सीखते हैं। इख्तिलाफ भी किया, बात भी की,
جواب بھی دیا، سوال بھی کیا، مگر کمرے میں کیا، جماعت سے کیا، قیادت کے ساتھ بیٹھ کر کیا، ایک لمحے کے لیے بھی باہر نکل کر علیحدہ مسجد بنانے کی، علیحدہ اینٹ رکھنے کی، علیحدہ گروہ بنانے کی کوشش نہیں کی۔